हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। પ્રધાનમંત્રીએ જ્યારે રાજ્યસભા અને લોકસભામાં આ વાત કરી ત્યારથી બધાને એવી આશંકા હતી કે શું ફરીથી ભારતમાં લોકડાઉન લાગશે। કોરોના જેવી પરિસ્થિતિની જ્યારે પ્રધાનમંત્રી વાત કરે છે તો શું ખરેખર કોરોના જેવી પરિસ્થિતિ એટલે કે એવું લોકડાઉન લાગવાનું છે। આમ તો પ્રધાનમંત્રીએ જ્યારે આખી વાતચીત કરી ત્યારે સ્પષ્ટ એવું કહ્યું હતું કે સંકટ વધી શકે છે, પરંતુ લોકડાઉનની વાત ક્યાંય નહોતી કરી। છતાં પણ સોશિયલ મીડિયા પર એના ઉપર ચર્ચાઓ ખૂબ બધી થઈ કે લોકડાઉન થવાનું છે, નથી થવાનું, થાય છે તો પછી શું કરવાનું, કેટલા કારણો છે। પણ હવે લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ આવે એવી કોઈ જ સંભાવનાઓ નથી, કારણ કે એક તો સ્ટેટ ઓફ હોર્મુઝ ખોલી દેવામાં આવ્યું છે। સાથે જ કેન્દ્ર સરકારે આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલના એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં 10-10 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો છે। એટલે પેટ્રોલ પર જે ડ્યુટી હતી એમાં 13 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો છે, એટલે 3 રૂપિયા કરવામાં આવી છે, અને ડીઝલ પર જે હતું એ 10 રૂપિયા હતી એ ખતમ કરી દેવામાં આવી છે, એટલે એના ઉપર શૂન્ય થઈ ગયું છે। એટલે તમે વિચારો કે પેટ્રોલ ડીઝલનો જથ્થો આપણી પાસે હવે એટલો છે કે એમાં એક્સાઇઝ ડ્યુટી જે હતી એ પણ ઓછી કરી દેવામાં આવી છે। આ વિષય પર આજે આખા દિવસમાં સંસદમાં પણ, સંસદની બહાર બધા જ નેતાઓએ બહુ બધી પ્રતિક્રિયાઓ આપી। પણ આ વિષય પર જ્યારે મંત્રી કિરણ રિજિજુને સવાલ પૂછવામાં આવ્યો ત્યારે પ્રધાનમંત્રીનો એમને આભાર માન્યો, અને પછી લોકોએ પૂછ્યું, પત્રકારોએ પૂછ્યું કે લોકડાઉન વિશે જે વાત કરવામાં આવતી હતી એ વિષય પર શું કહેવું છે। તો એમાં મંત્રીએ જવાબ આપતા એવું કહ્યું કે લોકડાઉન જેવી કોઈ પરિસ્થિતિ આવવાની જ નથી, અફવાઓથી ખૂબ દૂર રહેવાની જરૂર છે। આમ તો સોશિયલ મીડિયા પર બહુ જ બધા જે બુદ્ધિજીવી લોકો હોય એ લોકોએ બધા પ્રો એન્ડ કોન્સ બી બનાવી દીધા હતા કે જો લોકડાઉન આવે છે તો શું થઈ શકે, કેમ લોકડાઉન આવી શકે છે, કેમ ફરીથી આપણે કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં જઈ શકીએ છીએ। સરકાર તરફથી ક્યારેય એવું કહેવામાં નથી આવ્યું કે લોકડાઉન જેવું થઈ શકે છે કે પરિસ્થિતિ આવી શકે છે। અત્યારે તો જે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ છે એમાં ભારતને જે નુકસાન પણ થઈ રહ્યું હતું, કે જે સંકટ પણ હતો એ પણ ધીરે ધીરે ઓછો થઈ રહ્યો છે, એક પછી એક જહાજો પણ આવી રહ્યા છે, એટલે અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી કોઈ જ વિકટ નથી આવી। પણ પ્રધાનમંત્રીના એક નિવેદન પછી તમે જોયું કે કેવી રીતના પેનિક થયું અને બધાએ લાંબી લાંબી લાઈનો કતારોમાં ઊભા રહ્યા પેટ્રોલ પંપ પાસે। સોશિયલ મીડિયા પર ચાલતી એ વાતો, લોકડાઉનની વાતો, એના જવાબમાં મંત્રીએ આજે શું કહ્યું તે સાંભળો। सबसे पहले तो पूरे जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतना विपद काल में जबकि एक क्षेत्र में युद्ध चल रहा है जहां से हमारा गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे आते हैं, फिर भी ऐसे समय में इतना बड़ा कदम उठाना ये कोई मामूली कदम नहीं है, क्योंकि हमारे आम भारतीय लोगों को अपने ज़िंदगी में तकलीफ ना हो इसका सोच प्रधानमंत्री जी ने आज दिखाया है। नहीं तो आप भी, आम आदमी भी समझ सकते हैं हमारे देश में गैस और ऑयल कितने कम प्रोडक्शन होते हैं और हम बाहर से निर्भर रखते हैं। आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए, तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल तब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया। तो अभी हमने कई लोगों से बात किया, सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए, इतना बड़ा फैसला लिया है। आज पार्लियामेंट सेशन फिर कन्वेन हो रहे हैं, तो हमारे एमपीज भी इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि एमपीज जो होते हैं वो जनप्रतिनिधि है, और जनता के लिए इतना बड़ा सौगात लेकर के इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो की है, इसमें एमपीज सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि है एमपी, वो पार्लियामेंट से ये एक शुभ संकेत सबको जाना चाहिए कि देश में इतना जो बड़ा देश में कोई आम लोगों को तकलीफ ना आए, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। सर, एक लॉकडाउन का जो अफवाह उड़ रहा था उसको नहीं, ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है, जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण
में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ में जितने जो टीम है सबको इस काम में लगाया है कि कोई हमारे जनता तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरा सावधानी भड़कना चाहिए। इसलिए मैंने परसों ऑल पार्टी मीटिंग में भी देखा है कि अपोजिशन पार्टी ने भी एक तरीके से सराहना किया है कि इतना बड़ा क्राइसिस में हमारे देश के प्रधानमंत्री सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम है और कोई भी सरकार फैसला करेंगे उसमें सारे विपक्षी दल भी साथ देंगे, ये विपक्ष के पार्टियों ने कहा है। टीएमसी कह रही है कि गैस नहीं है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब इतना बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, डीजल और पेट्रोल में इतना बड़ा कटौती एक्साइज ड्यूटी में किया है, इसके बाद ज़मीनी स्तर पर कोई होर्डिंग करके और कोई चीज़ का कमी दिखाने के लिए, दाम बढ़ाने के लिए होर्डिंग करके कोई गलत काम करेंगे तो उसका बहुत सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है। तो आपको समझना चाहिए, अगर कहीं गैस के लिए लाइन लगते हैं, कोई पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, तो उसके लिए राज्य सरकारों को ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी की ओर से मैसेज दिया है। पार्लियामेंट के सदन में भी प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि कोई होर्डिंग ना हो। जमाखोरों को सख्ती से वार्निंग दिया है कि क्राइसिस पैदा नहीं कराना है, क्योंकि भारत सरकार पूरा नियंत्रण में सारा चीज़ को रखा हुआ है। तो इसको ज़मीनी पर कोई शॉर्टेज नहीं होना चाहिए गैस में, पेट्रोल डीजल में। जब भारत सरकार इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसका फ़ायदा लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी सबको है। राज्य सरकारों को विशेष करके आग्रह किया गया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि कोई गैस, पेट्रोल, डीजल कमी नहीं होना चाहिए किसी भी स्थान में। उसके लिए सब मिल करके काम करना चाहिए।